वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वक्तव्य दे रहे हैं। Third batch general for 2016-17 to the vote of the House. The question is that the respective supplementary sum not exceeding the amounts on the revenue account and capital account shown in the third column of the order paper be granted to the President of India out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 2017 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demands number 1 to 25, 27 to 30, 32, 36 to 39, 41 to 44, 46, 48, 50 to 54, 56, 58 to 61, 67, 68, 74, 75, 77, 78 and 80 to 98. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The supplementary demands for grant third batch general for 2016 are passed. Item number 30A. Honorable Minister. Yes. Appropriation. Yes. Madam Speaker, I rise to move for the leave to introduce a bill to authorize payment and appropriations of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2017 and 18. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The leave is granted. The minister may now introduce the bill. Madam, I introduce the bill. Item number 30B. Bill to pass. Madam Speaker, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2017-18 to be taken into consideration. The question is that the bill be taken into consideration. What is it? Services for the financial year 30B. 2016-17 16. be taken into consideration. That the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. The House will now take up clause by clause consideration of the bill. Question is that clause 2 and 3 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 2 and 3 stands part of the bill. The question is that the schedule do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The schedule stands part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and long title B. और इस वक्त जो लोकसभा में लेखानुदान एवं अनुपूरक मांगों पर चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद इस वक्त बल्कि मतदान चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र जुड़ रहे हैं। अश्विनी, हम वो सीधा प्रसारण देख रहे हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि इसके पहले जो चर्चा हुई उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें, कौन कौन सी पार्टी की तरफ से क्या क्या निकल करके आई? जी लालचंद, आज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट अनुदान और पूरक मांगे जो थी उन पर चर्चा हुई, तो विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक प्रतिनिधियों ने, सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी बातें रखी। भाजपा की तरफ से किरीट सोमैया ने अपना पक्ष रखा, सौगत राय ने आईटीसी की तरफ से अपना पक्ष रखा, एपी जितेंद्र रेड्डी टीआरएस सांसद हैं, अन्य अनेक बहुत सारे सांसद अलग अलग राजनीतिक दलों के, इन्होंने अपनी मांगे रखी। विपक्ष का जहां एक तरफ से ये हमला था कि खास तौर पे मनरेगा का जो एलोकेशन किया गया उस पर लोगों ने नाराजगी जताई और ये कहा कि उस अनुपात में, जिस अनुपात में पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी वृद्धि की थी, उस अनुपात में वर्तमान सरकार नहीं कर रही है इस वृद्धि का। लेकिन उसका साफ तरीके से एमओएस ने, फाइनेंस अर्जुन राम मेघवाल ने अपने जवाब के दौरान ये पक्ष भी रखा और उन्होंने साफ से आंकड़ों को बताते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में एलोकेशन भले ही ज्यादा होता था लेकिन खर्च कहीं ना कहीं बेहद कम होता था, से भी कम होता था खर्च। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में जो भी एलोकेशन हुआ है उसका अधिकांश खर्च किया गया है और उन्होंने साफ तरीके से इसका जिक्र करते हुए कहा कि आरोप सरासर निराधार है विपक्ष का कि मनरेगा जैसे लोकहितकारी मुद्दे पर सरकार कम धन खर्च कर रही है। अन्य मुद्दों में अगर देखें तो रेल बजट और
बजट का जो प्रक्रिया है, जो मर्जर है, और साथ ही साथ जो बजट प्रक्रिया को पहले बजट पेश करने की स्थिति है, इस पर भी जब सवाल आ गया तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का रिकमेंडेशन था, जो पहले का रिकमेंडेशन था, जनादेश मिला है, इसलिए राष्ट्रहित में हमने ये फैसला किया है रेल बजट के मर्जर का है, और साथ ही साथ जनरल बजट को प्रीपोन करने का भी। अन्य जवाब में भी जो मुद्दे उठाए गए उनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थितियां मानी गई, पूछी गई, और जो मुद्दे उठाए गए उस पर उन्होंने साफ तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऐसी लोक कल्याणकारी योजना है जो कि सामान्य तरीके से ठेले पर काम करने वाले, खोमचे पे काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले लोगों की लोन की गारंटी देता है। और उन्होंने आंकड़े भी पेश करते हुए कहा कि 1,80,000 करोड़ का अगर टारगेट दिया गया था तो अभी तक का, जबकि फिस्कल ईयर खत्म नहीं हुआ है, 1,31,398 करोड़ तक का टारगेट पूरा किया जा चुका है। तो बहुत सारी मुद्दों पर विपक्ष की शंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए उन्होंने गालिब का शेर भी पढ़ा और विपक्ष पर तंज भी कसा कि जिंदगी भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना पोंछते रहे। क्या बात। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तंज भी कसा और ये भी कहा कि सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत, समुन्नत भारत बनाने के लिए ये मांगे रखती है, और सरकार इन मांगों को प्रतिपूर्त करने के लिए सदन से अपेक्षा करती है, और उस पर फिलहाल मतदान जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए कि क्या क्या मुख्य चीज़ें, मुख्य बातें इस चर्चा के दौरान, इस बहस के दौरान आई। और अब हम आपको बता दें कि इस वक्त लोकसभा में जो आम बजट की लेखानुदान और अनुपूरक मांगे हैं उस पर इस वक्त मतदान चल रहा है। क्लाउज बाय क्लाउज लोकसभा अध्यक्षों से ले रही हैं और उस पर मतदान कराया जा रहा है।